اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، وہ زندہ اور قائم دائم ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس کسی کی سفارش کر سکے؟ اللہ جانتا ہے جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں پھیلی ہوئی ہے اور ان کی حفاظت اللہ پر بوجھ نہیں پڑتی۔ آسمانوں اور زمینوں میں پھیلی ہوئی ہے اور ان کی حفاظت اللہ پر بوجھ نہیں پڑتی۔ وہ بہت بلند مرتبہ عزت والا ہے۔ اللہ واحد ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے، اور کوئی اللہ کا ہم پلہ نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں دجال سے خبردار کرتا ہوں، ایسا کوئی نبی نہیں جس نے اپنی قوم کو دجال سے خبردار نہ کیا۔ بے شک نوح نے بھی اپنی قوم کو دجال سے باخبر کیا تھا، لیکن میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی پیغمبر نے نہیں بتائی۔ جان لو کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی اور اللہ ایک آنکھ والا نہیں۔ Milestone in Baghdad. Nearly 1,400 Iraqi civilians were killed in May. After 3 months of heavy fighting and hundreds of people killed, allegedly backed by the United States, More deaths. Government in Somalia. the Islamic Courts movement patrolling in victory around the streets of Mogadishu. Their Black Hawk helicopters downed. Imposed Sharia law on Somalia. The Clinton administration could not stomach this War against terror. as the Islamic threat. These Islamic militias Islamic State will emerge. اب سے 3 سال پہلے میرے ایک دوست نے میری توجہ اس طرف دلائی کہ ایک آنکھ کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے، پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا، ایک آنکھ کی جھلک ہر طرف نظر آتی ہے، اور ایک تنظیم ہے فری میسنری جس کا نشان ہے ایک آنکھ۔ For hundreds of years, the Freemasons, the world's oldest secret society, have been suspected of plotting to take over America. Freemasons led the American Revolution and played critical roles in the Declaration of Independence, the Constitution, and the design of Washington, D.C. The untold story of the Freemasons in America reveals secret codes, patterns taken from the stars, murder, and a radically new picture of the nation's founding fathers. کئی 100 سالوں سے دنیا کی خفیہ تنظیم فری میسنری امریکہ اور دنیا پر حکمرانی کے منصوبے بنا رہی ہے۔ فری میسنری نے امریکی جنگ آزادی لڑی، اپنی آزادی کا اعلان کیا اور واشنگٹن ڈی سی کو ڈیزائن کیا۔ انہی لوگوں نے سمبلز کا استعمال شروع کیا، قتل کرائے، اور انہی کے لوگ امریکی قوم کے پاسبان بنے۔ A gathering cloud of suspicions has renewed interest in an old idea that the United States is somehow under the control of a powerful secret society. امریکہ ایک بین الاقوامی خفیہ تنظیم کے زیر اثر ہے، An apparently innocent جس کے 2 لاکھ سے زیادہ ممبر ابھی امریکہ میں موجود ہیں، in the United جن کو States, فری میسن کہتے ہیں۔ the Freemasons. فری میسنری کے اندر کلوز ہیں جن کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ جب میں نے فری میسنری کو انٹرنیٹ پر سرچ کیا تو ایسی حقیقتیں سامنے آئیں جو کسی بھی صاحب ایمان کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے۔
यह हकीकतें जानने के बाद आपका खबरें देखने का जाविया ही बदल जाएगा। सबसे अहम चीज जो नजर आई वो था डॉलर। डॉलर के ऊपर फ्री मेसनरी का निशान। आइए जरा डॉलर का बगौर जायजा लेना शुरू करें। $1 के सामने वाली साइड पर जॉर्ज वॉशिंगटन की तस्वीर बनी हुई है और लिखा है वॉशिंगटन डीसी। America's most important founding Freemason was none other than George Washington. The fact that Washington is a Freemason is of enormous मगर अमेरिका का सबसे अहम George फ्रीमेसन Washington joined जॉर्ज even when he वॉशिंगटन was just था। 20 years old. So anxious was he to join the fraternity. With the War of Independence underway, General Washington struggled to transform the ragtag Continental Army अमेरिकी अफवाज को आजादी की जंग के लिए तैयार किया। पिछली तरफ बीच में लिखा है इन गॉड वी ट्रस्ट। इस साइड पे जो सबसे खतरनाक चीज है वो है आंख। एक आंख। इस आंख के पीछे से रोशनी आ रही है और आंख के ऊपर 13 लैटिन हुरूफ में लिखा है उसने हमारी अंडरटेकिंग मंजूर कर ली। आंख के नीचे एक पिरामिड है जिसके 13 स्टेप हैं और सबसे नीचे रोमन में लिखा है 1776। पिरामिड के नीचे एक रिबन और लैटिन हुरूफ में लिखा है एक नया ऑर्डर जारी हो गया। पिरामिड के बिल्कुल पीछे उफक पर 2 पहाड़ियां नजर आ रही हैं। इस तस्वीर में वो पहाड़ियां बहुत छोटी हैं लेकिन एक्चुअल डॉलर में आप उनको बआसानी देख सकते हैं। पिरामिड और रिबन के बीच में कुछ पौधे निकले हुए हैं और सबसे नीचे लिखा है द ग्रेट सील यानी सबसे बड़ी मोहर। दूसरी तरफ वाले दायरे में अमेरिका का कौमी परिंदा सफेद सर वाला अकाब है। यह वाहिद अकाब है जो गिद्ध की तरह मुर्दार खाता है। बाकी सारे अकाब शिकार करके खाते हैं। इस अकाब के मुंह में भी एक रिबन है जिस पर 13 लैटिन हुरूफ में लिखा है मुख्तलिफ कौमों का गुरोह। इस अकाब की सोच में 13 सितारे हैं और ये दूसरी तरफ उस आंख के पीछे जो रोशनी है उसको देख रहा है। इस अकाब के सामने एक ढाल है जिस पर अमेरिका के झंडे की तरह 13 धारियां हैं। इस अकाब के एक पंजे में जो आंख की तरफ है जैतून की एक शाख है जिस पे 13 जैतून के पत्ते हैं और 13 फल भी लगे हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ वाले पंजे में 13 तीर हैं और नीचे लिखा हुआ है ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। फ्रीमेसनरी का मेंबर बनने के लिए जो बुनियादी शर्त है वो है सुप्रीम बीइंग पर ईमान लाना। इस वक्त दुनिया में मेसनरी के 50 लाख से ज़्यादा मेंबर हैं जिनमें से सिर्फ 5% ये जानते हैं कि सुप्रीम बीइंग है क्या। कोई भी शख्स जो अपने फ़न में माहिर हो वो फ्री मेसनरी का मेंबर बन सकता है। फ्री मेसनरी की 33 डिग्रीज या क्लासेस हैं। जो शख्स जिस डिग्री या क्लास में होता है उसको उसी डिग्री या क्लास की किताबें भी दी जाती हैं और कोई भी इंटरनेट पर ऑनलाइन इस शर्त पर वो पढ़ भी सकता है कि वो अपने मेंबर होने का सबूत दे। दुनिया की सबसे पुरानी इस खुफिया तंजीम पर बहुत से मुल्कों में पाबंदी भी है जैसा कि पाकिस्तान, मगर फिर भी इसकी एक बहुत बड़ी निशानी कराची का टावर इसके कभी यहाँ होने का सबूत है। मेसनरी की किताबों में बहुत सी बातें मेसन्स को मिसगाइड करने के लिए भी कही जाती हैं। सारे क्लूज आपस में उलझे हुए हैं। डॉलर एक चाबी है जो जितना मेसनरी, सुप्रीम बीइंग और इन क्लूज को समझता जाता है ऊपर की डिग्री या क्लास में प्रमोट होता जाता है। अकाब के ख्याली सितारों को जोड़ने पर डीमन ट्रैप बन गया। इसको यहूदी स्टार ऑफ डेविड भी कहते हैं। यही निशान इसराइल के परचम पर भी नजर आता है, जबकि मेसनरी का निशान इसराइली सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग पर भी नजर आता है। इससे ये बात तो वाज़ेह हो गई कि इस तंजीम के पीछे यहूदियों का ही हाथ है। आखिर ये यहूदी कौन है, इनकी क्या तारीख है और इनका क्या ईमान है। If we give up the fight in the streets of Baghdad, we will face the terrorists in the streets of our own cities. We can decide to stop fighting the terrorists in Iraq and other parts of the world, but they will not decide to stop fighting us. General John Abizaid, our top commander in the Middle East region, recently put it this way: if we leave, they will follow us. And he is right. The security of the civilized world depends on victory in the war on terror, and that depends on victory in Iraq. So the United States of America will not leave until victory is achieved. It's one of the most shocking crimes alleged to have been carried out by US troops in Iraq.
One of 4 American soldiers accused of raping a 14-year-old Iraqi girl, James Barker, admitted to taking part in the attack. The BBC's Jane Peel was at the hearing at a US military base in Baghdad. This is the scene of one of the most shocking crimes alleged to have been carried out by American soldiers in Iraq. Based on evidence given at the hearing, one afternoon in March, 4 soldiers walked through the trees and approached this house. Here, according to specialist James Barker's statement, he and another soldier took it in turns to rape the 14-year-old girl. In another room, the girl's parents and 5-year-old sister were shot dead. This man, Stephen Green, is accused of committing all the murders. American policy in the Middle East comes down to a straightforward choice. We can allow the Middle East to continue on its course, on the course it was headed before September the 11th. And a generation from now, our children will face a region dominated by terrorist states and radical dictators armed with nuclear weapons. Or we can stop that from happening by rallying the world to confront the ideology of hate and give the people of the Middle East a future of hope. And that is the choice America has made. And is being tried in an American civilian court. Barker's statement said after Green had killed the 2 adults and the little girl, he came into the room where the teenager was being sexually assaulted. He had an AK-47 rifle in his hand. He said, "They're all dead. I killed them." He put the weapon down, raped the 14-year-old, and then shot her dead too. This is a pivotal moment for the Middle East. The world is watching, and in Iraq and beyond, the forces of freedom will prevail. यहूदी बनी इसराइल में से हैं। हज़रत इब्राहीम की 2 बीवियां थीं, पहली बीबी सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दूसरी बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। बीबी हाजरा से बड़े बेटे हज़रत इस्माइल पैदा हुए, छोटे बेटे हज़रत इसहाक बीबी सारा से हुए। हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह के हुक्म पर बीबी हाजरा को उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मक्के में उस जगह छोड़ दिया जहाँ हज़रत आदम की बनाई हुई खाने काबा की सिर्फ बुनियादें बाकी रह गई थीं। खाने काबा जो हज़रत नूह के ज़माने में पानी की वजह से मखदूश हो गया था, जिसके दूर दूर तक कोई आबादी न थी। वीराने में बीबी हाजरा और नन्हे इस्माइल को छोड़कर वो वापस अपने वतन चले गए। फिर वहां से हज़रत इस्माइल की नस्ल शुरू हुई जो आगे चलकर अरब कहलाए। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब के 12 बेटे थे, जिनमें से एक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कत्ल की गर्ज से कुएं में धक्का दे दिया। अल्लाह ताला ने बचाया, किसी न किसी तरह मिस्र पहुंच गए और बादशाह के दरबार में आला ओहदे पर फायज हो गए। फिर उन्होंने अपने वालिद हज़रत याकूब और भाइयों को भी अपने पास बुला लिया। मिस्र का इलाका उस वक्त फर्टाइल क्रिसेंट के इलाके में आता था, जो बहुत ज़रख़ेज़ तस्वुर किया जाता था। हज़रत याकूब के इन 12 बेटों से बनी इसराइल कौम ने वजूद लिया। अल्लाह ताला ने ज़्यादातर पैगंबर इस कौम को सुधारने के लिए भेजे। यहूदी अल्लाह ताला को जानने और नबियों को आजमाने के लिए मौजूदगी की फरमाइश करते और यकीन हो जाने के बाद नबियों को कत्ल करने की कोशिश करते और अपनी इस कोशिश में कई दफ़ा कामयाब भी हुए। फ़िरौन के ज़ेर असर रहने की वजह से फ़िरौनियत इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। इन यहूदियों का ईमान है कि आदम की तख्लीक से पहले शैतान की इस कायनात के कुछ हिस्सों पर हुकूमत थी। जब उसको आदम के बाद जन्नत से निकाला गया तो उसकी सल्तनत भी ख़त्म कर दी गई। तब से अब तक वो दुनिया में या दुनिया के गिर्द चक्कर लगाता रहता है और जल्द ही इंसानी शक्ल में दुनिया पर हुकूमत करने के लिए आएगा। जब मैंने सैटर्न को answers.com पर सर्च किया, वहाँ मुझे एक चौंका देने वाली बात नजर आई कि पुराने यहूदी इस बात की गवाही देते थे कि शैतान ने जो कुछ किया वो जन्नत हासिल करने के लिए किया, और एक यहूदी ये भी कहता था कि शैतान बजाते खुद उसके पास आया और उसके घुटने चूमे। कुरान शरीफ की 7वीं सूरत आयत नंबर 175 में अल्लाह ताला फरमाता है, उन्हें उस शख्स की खबर सुना जिसे हमने आयतें दी मगर वो उनसे निकल गया, फिर शैतान उसके पीछे लग गया और वो बहकने वालों में से हो गया। 8वीं सूरत आयत नंबर 48 में बयान होता है, जब शैतान ने उन्हें उनके अमाल खुशनुमा करके दिखाए और कहा, आज लोगों में कोई भी तुम पर गालिब नहीं हो सकता और मैं तुम्हारा रफीक हूँ। आखिर शैतान ने यहूदियों को ऐसा कौन सा तरीका बताया था जिससे कोई भी इंसान उनको शिकस्त नहीं दे सकता, मगर हक बात तो यह है कि अल्लाह ताला से ताकतवर कोई भी नहीं और आखिरी जीत मुसलमानों की ही होगी।
What is the Greek word there when the first time the word God occurs? When the word was with God. What is the Greek word there? The Greek word there is hotheos. Hotheos means the God. So the Europeans, they have a format. They translate, they put capital letter for the proper noun. And they put small letter for the common noun. So here they put a capital G for God. So no problem. What is the Greek word there when it says, when the word was God? Second time, when the word God occurs. The Greek word there is tontios. Tontios means a God, not the God. Now, when we read in 2 Corinthians, chapter 4, verse number 4, it says, and Satan is the God of this world. Satan, devil, he is the God of this world. The word here for God is again hotheos. Hotheos means the. यहूदियत में तबलीग नहीं करते, इसलिए दूसरों को जो अपने फन में माहिर थे यहूदी पैसे के बल पर अपनी तंजीम में आने की दावत देते, मगर शर्त यही होती कि सबसे मोतबर शय पर ईमान लाना। इंजील में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की वाज़ेह निशानियां थीं कि ये देखकर इनके चंद कबीले मदीने के आसपास आकर आबाद हो गए। औस और खुज़रज मक्के के 2 कबीले इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते थे और इसके बदले उनसे जज़िया और असला लेते, क्योंकि ये यहूदी सुनार और लोहार दोनों कामों में बहुत माहिर थे। ऐलान नबूवत के बाद से यहूदियों ने मुशरिकीन मक्का के साथ मिलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिशें शुरू करीं, मगर अल्लाह ताला के हुक्म पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने हिजरत कर जाने की वजह से मुशरिकीन और यहूद के इरादे खाक में मिल गए। रही सही कसर ग़ज़वा बदर और उहद में पूरी हुई। ग़ज़वा खंदक में जब यहूदियों ने मीसाक तोड़ा और कुफ़ार की मदद की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मदीने से निकल जाने का हुक्म दिया। फतह खैबर के मौके पर काफ़ी यहूदी मारे गए और जब अल्लाह ताला के हुक्म पर इनको जज़ीरा नुमा अरब से निकाल देने का हुक्म मिला तो कुछ तो भाग गए और कुछ रूपोश हो गए। हज़रत उमर के ज़माने में इनकी जान पर बंधाई तो ये जनूबी यूरोप के इलाके में जाकर आबाद हो गए। स्पेन के बादशाह ने इनको जूती की नोक पर रखा और जब 912 ईस्वी में अब्दुर्रहमान सोएम और उसके बेटे अल हकम दोम ने स्पेन पर कब्जा किया तो इनका सुनहरी दौर शुरू हुआ। 912 से 976 ईस्वी तक यहूदी साइंस, तिजारत, रेशम, पैसे और गुलामों की तिजारत में मुलव्वस रहे और अपनी ताकत बढ़ाई। इस्लाम और ईसाइयत में सूद हराम होने की वजह से ये लोग पैसे के कारोबार पर हावी रहे। सने ईस्वी 1066 में सलीबी जंगों के ज़माने में ये यूरोप जाकर आबाद हो गए और अपनी तंजीम को मजीद मजबूत करते रहे। सने ईस्वी 1136 में इन्हीं लोगों ने ईसाइयत का लिबादा ओढ़कर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को हासिल करने की कोशिश की, जिसकी बशारत नूरुद्दीन जंगी को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ख्वाब में दी। उस वक्त की हुकूमतों को जब यहूदियों की खुफिया तंजीम के बारे में इल्म हुआ तो उन्होंने इसको अपने खिलाफ साजिश समझा। जब पानी सर से ऊपर होने लगा तो सने ईस्वी 1490 में फ्रांस ने 1 लाख यहूदियों को मुतबदल किया। सने ईस्वी 1492 में 2 लाख यहूदियों को स्पेन से निकाला गया, जबकि सने ईस्वी 1493 में इसी खुफिया तंजीम के फैलाने पर 39,000 यहूदियों को पुर्तगाल से निकाला गया। आखिरकार 1655 में बरतानिया ने यहूदियों को दूसरे दर्जे के तौर पर मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त दी। फ्रांस में यहूदियों की तारीख बहुत पुरानी है। सने ईस्वी 1390 में ये फ्रांस के शुमाल में नॉर्मंडी के इलाके में थे। फिर सने ईस्वी 1450 में ये इलाका फ्रांस में शामिल कर दिया गया। यूरोप के किसी भी मुल्क में इस वक्त सबसे ज़्यादा यहूदी फ्रांस में ही मुकीम है। 1655 से 1717 तक यहूदी और उनकी तंजीम काफ़ी मजबूत हो चुकी थी। यूरोपीय हुकूमतें पैसे के बल पर इनके हाथ में थीं। तभी इन्होंने सन 1717 में अपनी खुफिया तंजीम को फ्रीमेसनरी का नाम दिया और बरतानिया में पहला ग्रैंड लॉन्च कायम किया। The story begins in England, where the first Grand Lodge of Freemasons was founded. कहानी इंग्लैंड से शुरू होती है, जहाँ मिशनरी का पहला ग्रैंड लॉन्च बना। इन लोगों ने कुछ ऐसे उसूल बनाए जो उनकी नज़र में बहुत रोशन थे। साइंस, वजूहात और सबसे बढ़कर सोच की आज़ादी। Their own blend of Enlightenment ideas, science, reason, equality, and freedom of thought. These rituals used by Freemasons are undoubtedly of ancient Jewish origin, very old Jewish origin, going back to the time. मिशनरी की बहुत सी रिवायत यहूदियों से मिलती हैं, जो तकरीबन 3000 साल पुरानी हैं। Which is at the heart of the concept of Freemasonry. Each Freemason is physically resurrected from a symbolic death. अमेरिका की दरियाफ्त के बाद से ही इनकी अमेरिका पर नजर थी। अमेरिका पर बरतानी तसल्लुत इनसे बर्दाश्त न हुआ
तो इन यहूदियों ने फ्रांस की मदद से अमेरिका में जंग आज़ादी शुरू करी। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सन 1730 में अमेरिका का पहला मैसोनिक लॉन्च फिलाडेल्फिया में कायम किया। बेंजामिन फ्रैंकलिन अव्वल दर्जे का सियासतदान तो था ही, साथ ही साथ वो एक बहुत पाए का साइंसदान भी था, जिसने बिजली पर बहुत कायम किया और गल्फ स्ट्रीम का नक्शा पहली बार बनाया। बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिकन रेवोल्यूशन के लिए इमदाद लेने फ्रांस गया, जहां के यहूदियों ने उसको पर्दे फराहम किए और साथ ही साथ अस्करी इमदाद भी दी। Benjamin Franklin was one of the first Americans to join the secret society. He underwent the फ्रैंकलिन पहला अमेरिकी था जिसने मिशनरी का काम शुरू किया in 1731. But the war did not begin well for the Americans. Washington knew that without more supplies and better officers, the revolution was doomed. Washington's fellow Freemason Benjamin Franklin tackled this situation by persuading France to enter the war on America's side. Washington को मालूम था कि बगैर इमदाद के जंग नहीं जीत सकते, इसलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने फ्रांस से इमदाद ली, क्योंकि वो फ्रीमेसनरी में बहुत अहम रुकन था। What were those connections? He was a Freemason. He was very active in Freemasonry. In fact, Benjamin Franklin guided Voltaire in his initiation in the Lodge of the Nine Muses in Paris. I mean, he was so well connected. He used the Masonic network to recruit great generals and officers from around Europe who were willing to come, serve under another Mason, George Washington, fight for the ideals of the American Revolution, because those were also Masonic ideals. With the Mason-influenced revolution underway and a new nation being defined, Freemason Benjamin Franklin suggested an important change to Thomas Jefferson's draft of the Declaration of Independence. Freemason Benjamin Franklin ने थॉमस जेफरसन के आज़ादी के मुसव्वदे में काफी तब्दीलियां की। The word sacred worried Franklin, who was by now Grand Master of the Pennsylvania Freemasons. A Freemason's America, in accordance with Enlightenment ideas, would be bound by reason, not faith. Franklin suggested a more suitable word, self-evident. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. The Declaration of Independence is part of the same intellectual world as early Freemasonry. It's a world where God still exists, but you don't emphasize the specific things that divide you about religion. Protection of divine providence. These individuals were not primarily Christians in their belief system. They saw themselves as Christians in a very broad. ये लोग क्रिश्चियन दिखते जरूर थे, मगर थे नहीं। ये खुदा की बात नहीं करते। They talked about belief in man and the importance of doing good works in this life, on this earth. They talked about tolerance, progress, the need for men to band together to change society. Of the 56 men to sign the Declaration of Independence, 9 were openly Freemasons, including the deciding officer John Hancock. Presiding officer John Hancock भी But शामिल था। America's most important founding Freemason was none other than George Washington. अमेरिका में जंग आज़ादी जीतते ही यहूदी बहुत मजबूत हो गए। सन ईस्वी 1781 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बरतानवी हुकूमत से अमन मुआहदा किया। अमेरिका के हाथ में आते ही यहूदियों ने 1787 में फ्रांस में इनकलाब शुरू करा दिया। फिर नेपोलियन को, जो सन ईस्वी 1798 में यूएसए फिलाडेल्फिया में रजिस्टर्ड मेसन था, आज़ादी फ्रांस के लिए बुलाया और आखिरकार 1799 में नेपोलियन ने फ्रांस का तख्ता पलट दिया और यहूदियों को मजहबी आज़ादी दी और 1804 में यहूदी औरत से शादी भी कर ली। यहूदियों की गिरफ्त अमेरिका पर मजबूत हो चुकी थी। इधर यूरोप में 1807 में जब नेपोलियन की हुकूमत पुर्तगाल से इटली तक फैल गई तो यहूदी मजबूत से मजबूत होते चले गए। 1933 में उधर जर्मनी में हिटलर ने यहूदियों की बढ़ती हुई ताकत और उनकी शैतानी तंजीम के बढ़ते हुए असरात को भांपते हुए उन पर सख्ती करना शुरू करी और ये नतीजा निकाला कि इनको मार दिया जाए। जंग अजीम 2 में हिटलर ने इन यहूदियों के लिए डेथ कैंप बनवाए और तकरीबन 6 लाख यहूदियों को मरवा दिया। ये यहूदियों की तारीख में सबसे बड़ी तबाही साबित हुई। 1935 में डॉलर का मौजूदा नोट जारी करके यहूदियों ने दुनिया में अपनी बर्तरी जाहिर करने के साथ साथ एक नया ऑर्डर जारी किया, जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी कहा जाता है। हिटलर ने डेनमार्क को भी कब्जा कर लिया, मगर बादशाहत वही बरकरार रखी। हिटलर ने डेनमार्क के बादशाह को हुक्म दिया कि यहूदियों को डेनमार्क से निकाल दिया जाए।
मगर बादशाह इस बात से राजी ना था, फिर भी यहूदियों को स्वीडन भेज दिया। इसके बाद हिटलर ने हुक्म दिया कि डेनमार्क में जितने यहूदी हैं वो येलो स्टार पहने। ये एक ऐसा बैच था जिस पे पीले रंग का सितारा बना था जिसके 6 कोने थे, और यहीं से ये यहूदियों का निशान बना। डेनमार्क के बादशाह ने यहूदियों को सपोर्ट किया और सबसे पहले येलो स्टार उसी ने पहना और हुक्म दिया कि सब लोग वही स्टार पहने ताकि यहूदियों को पहचाना ना जा सके। याद रहे ये वही डेनमार्क है जहां से सितंबर 2005 में कार्टून शाये हुए जिन्होंने पूरी मुस्लिम दुनिया को हिला कर रख दिया। हिटलर की शिकस्त और जंग अजीम दोम के खत्म होते ही इन यहूदियों के ज़ेर असर 51 ममालिक ने यूनाइटेड नेशन कायम की। इन 51 ममालिक में वो मुल्क भी शामिल थे जहां अंग्रेजों की हुकूमत थी, जैसे इंडिया जो अपने आज़ाद होने से पहले ही सन 1945 में यूएन का मेंबर बन गया था। यूनाइटेड नेशन का मकसद यहूदियों के शैतानी वर्ल्ड ऑर्डर को दुनिया पर राइज करना और अमन के नाम पर आज़ाद मुल्कों में अपनी फौजें उतारना है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जुमला पहली बार अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने पहली जंग अजीम के दौरान इस्तेमाल किया और यूनाइटेड नेशन के जरिए दूसरी जंग अजीम के बाद इसको तक़वियत मिली। इस शैतानी हुक्मनामे के सामने 2 कुव्वतें थीं, एक रूस और दूसरी मुसलमान। इसका हल यहूदियों ने नेटो कायम करके बनाया। नेटो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो खालिसतन यहूदियों के मफाद के लिए है, जिसमें मगरबी यूरोप, अमेरिका और कनाडा शामिल है। यूनाइटेड नेशन और नेटो के बनते ही यहूदियों ने फलस्तीन के इलाके में अपना मुल्क इसराइल बनाया। इसराइल वो वाहिद मुल्क है जिसकी कोई सरहदें नहीं। इसराइल के फ्यूचर मैप में जो सरहदें दिखाई गई हैं उनमें पूरा जजीरा नुमा अरब शामिल है। अमेरिका की 231 साल जमहूरियत में अब तक जितने भी प्रेसिडेंट आए उनमें से 27 कन्फर्म मेसन थे, जबकि 6 एल्यूमिनाटी के मेंबर थे जो फ्री मेसनरी की हायर ब्रांच है, और 2 ऐसे थे जो फ्री मेसनरी और एल्यूमिनाटी दोनों के मेंबर थे। 70 की दहाई में रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया। यहूदी रूस को पहले खत्म करना चाहते थे, शायद इसलिए कि मुसलमान ताकत में रूस से कम थे और उनको बाद में आसानी से खत्म किया जा सकता था। इन्हीं यहूदियों ने मुसलमानों की पाकिस्तान के जरिए मदद की और बिलाखिर में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह दी और 1992 में अफगानिस्तान में आज़ाद इस्लामी हुकूमत वजूद में आई। यहूदियों ने मुसलमानों को खत्म करने का काम शुरू किया और सन 1995 में $20 का नया नोट जारी किया। एक खास तरीके से इस डॉलर को फोल्ड करें तो आप देखेंगे कि ट्विन टावर्स तबाह हो रहे हैं। इनकी ये स्कीम 11 सितंबर 2001 को अमल में आई और वॉर अगेंस्ट टेरर के बैनर तले मुसलमानों का कत्ले आम शुरू हो गया। जो बदकार